study math. Technique number one is called flashlight mode. In her book, A Mind for Numbers, Barbara Oakley says that ऐसा imagine मैटर a बन जाता है जो flashlight. लगभग It कंटिन्यूअस has है, two जिसे आप modes. दीवार के आर पार नहीं One निकल is सकते the क्योंकि focus दीवारें mode. प्रॉपर This is केमिकल when बॉन्ड से दीवारों के concentration एटम्स आपस में reduces जुड़े हुए हैं। information. तो इसी तरह से Very important बॉन्ड in बड़ा math मजबूत हो projects. जाता है अगर वो सारे We also discussed the के बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट होता है, आयनिक होता है, मेटलिक होता है, तीनों ही The पक्के second हैं। mode is called the लेकिन ये diffuse जो mode. इंटरमॉलिक्यूलर This फोर्सेस हैं ये is the सिग्निफिकेंटली big वीक होते picture हैं। mode. दो This पांच is what परसेंट दस happens परसेंट बहुत once हुआ you relax your 20%, इससे mind ज्यादा into शक्ति नहीं होती एक नॉर्मल बॉन्ड के unresolved mode. मुकाबले किसकी, This mode इंटरमॉलिक्यूलर is फोर्सेस very की। essential for अच्छे से math, अच्छा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस especially if math is मैक्सिमम being really 10-20% fun स्ट्रेंथ रखता and है the एक problem नॉर्मल solver. केमिकल बॉन्ड की, Problem इससे ज्यादा is नहीं। all unit और atoms are इसका जो singular. अट्रैक्टिव कंपोनेंट Let's है, take an अगर example. मॉलिक्यूल्स आपस में Two अट्रैक्ट करते हैं areas तो in the जिस भी center तरह का of अट्रैक्शन है the उसको एक और कॉमन नाम दिया जाता है, and use this to वो सब use the कलेक्टिवली focus कहलाते हैं effect. So what वॉन is the वॉल्स third फोर्सेस। error? Now the वॉन third वॉल्स error is the decision वैज्ञानिक हैं, tree पुराने बहुत ही concept. सम्मानित It वैज्ञानिक arrives हैं, at initial उनके level नाम के of सम्मान में information. इन्हें But this वॉन वॉल्स truth फोर्सेस comes कहा through जाता है। only when अच्छी you बात है। use the diffuse ये mode. कैसे हैं? So ये if वीक somebody हैं। tells you that अच्छा, all you need to लेकिन do is set a लेकिन फिर भी status कुछ तो है ही symbolic सही। technique, आइए उनके बारे में then जानते tell हैं them that it is कितने not तरह के हो possible सकते हैं ये वॉन unless वॉल्स you फोर्सेस। utilizing ये the कई तरह के हो diffuse सकते mode. हैं। So सबसे Barbara पहले आपको Oakley ध्यान रखना goes होगा on to कि say जिन स्पीशीज that को हम in अटेंड कर order रहे to हैं learn उसमें math, कुछ you आयंस need हैं, to balance कुछ two modes, the डायपोल्स हैं। focus mode, the डायपोल diffuse समझते हैं? mode, and हाँ, the देखे थे fluid ना, हमने mode. डायपोल मोमेंट She निकाले थे। जी says हाँ, as हम उनको एक much नाम as देंगे, practice हम error उनको is important for us परमानेंट to progress in डायपोल या math, पीडी so ऐसा is कहेंगे। sleep ऐसा to क्यों बोल रहे हैं improve आप? the power of our brain. अच्छा है बोलना, Technique number क्योंकि two कभी is कभी ये भी called होता है कि एक visualization. इंस्टेंटेनियस Stanford डायपोल बन researcher जाता है and math professor Joe Goyer और used to एक इंड्यूस्ड analyze डायपोल भी Stanford बन जाता young है। students studying math. तो दो And चीजें बोल रहा she हूँ, एक found इंड्यूस्ड that और एक 2 out of the 5 passes that were इंस्टेंटेनियस engaged were visual. डायपोल। And she believes अच्छा, that finger ये क्या perception चीज है? and ये visual तीन अलग अलग support आइटम है। is very, इंड्यूस्ड very मतलब important for us उस to help किसी in learning दूसरे के math. कारण डायपोल आ Let's गया। take an example. क्या A मतलब है group of आपका? students who जैसे मान both लीजिए feel कोई भी safe मॉलिक्यूल है, and मान लीजिए are both जैसे connected to CH2 safer डबल groups बॉन्ड give us CH2 है, very different answers. ठीक है। The students create a इथीन का game of मॉलिक्यूल who पोलर gets to मॉलिक्यूल stand है, around म्यू and do the जीरो है। work. और You will find अ, that अगर actually मान goes लीजिए at ये किसी first. पोलर And मॉलिक्यूल के second पास part, आता है, किसी this आयन is के the पास आता है, solution. जैसे घूम घाम रहा है Humans और form घूमते घूमते मान लीजिए ये different Cl favorite माइनस kinds के of आसपास आ गया। understanding. So basically, रैंडम चलते रहता whenever है, you're solving a टकराए। math problem, अब जब draw a करीब आएंगे तो diagram, डू यू सी table, एक or a Cl माइनस chart पर चार्ज कैसा है? wherever possible. माइनस है। Mention तो it to माइनस चार्ज someone के in your कारण class ये today, हल्का and सा you'll be able इलेक्ट्रॉन, to इसमें भी solve तो that इलेक्ट्रॉन problem क्लाउड है, हाँ, इस पे भी faster. इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बिल्कुल। Technique तो number इलेक्ट्रॉन three क्लाउड्स एक is दूसरे को called रिपेल करेंगे जरूर। math practice. क्या आपको Most आइडिया people है कि believe that इलेक्ट्रॉन math क्लाउड खसक ability कर is उल्टी about तरफ जा सकते faith हैं? and तो मान लीजिए ये इसका accuracy. इलेक्ट्रॉन क्लाउड And they था will tell you to तो go ये a हल्का little सा इस तरह से complicated हो because जाएगा, practice makes math is मतलब solving इलेक्ट्रॉन क्लाउड problems. पीछे की तरफ ज्यादा हो जाएगा Main और problem सामने की solving तरफ is कम। about यहाँ माइनस चार्ज है ही, trying हल्का सा different प्लस और हल्का सा methods, माइनस हमेशा failing नहीं and रहता। trying आया again. तो And if you माइनस don't रिपेल get होकर it पीछे चला right, गया, then सामने हल्का सा either प्लस आ गया leave, और go हम elsewhere, कहेंगे come back एक another time, try a different इंड्यूस्ड method, डायपोल and बन you're गया gonna है। find this और math बाबा easy. इंड्यूस्ड क्या है? This is the खुद था concept नहीं, of group जैसे practice. ही आयन के पास Uncommon आया एक advantage here. चार्ज If उसके ऊपर you नया can't take पड़ोसी के part, असर के to कारण step पैदा हो back गया तो stated the डायपोल problem longer. इंड्यूस हो गया। And to gain a वो deeper टेम्पररी है, understanding into the इंड्यूस concept डायपोल है। of group टक्कर मारी, practice, जब लौट गया, we got in जैसे ही touch क्लोराइड आयन with हट math जाएगा वो specialists डायपोल and खत्म हो found that जाएगा। Taylor लेकिन फिर learning भी is जब just like a करीब आए power. हैं तो एक इंड्यूस डायपोल बना है, उसके कारण भी अट्रैक्शन होगा। ये तो कम होगा पर होगा तो सही। ये इंड्यूस डायपोल है, ठीक है। और एक होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये क्या है? कोई भी जैसे एटम है, मान लीजिए आर्गन का एटम है, नोबल गैसों के एटम और मॉलिक्यूल एक ही बात है क्योंकि इंडिपेंडेंट एटम्स ही घूमते रहते हैं। उनके शेप कैसा है? स्फेरिकल है, बड़ा सिमेट्रिक है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बिल्कुल जी। एक बात बताइए, क्या हमेशा सृष्टि की शुरुआत से आज तक वो हमेशा सिमेट्रिक है? होना ऑन एन एवरेज तो चाहिए, ऑन एन एवरेज सिमेट्रिक है, एकदम डिट्टो सिमेट्रिक नहीं है। कहीं हल्का सा प्लस, कहीं हल्का सा माइनस, निमिष मात्र के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आ सकता है। जी हाँ, जरूर आ सकता है। तो अगर हल्का सा प्लस हल्का सा माइनस कहीं आ गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो आप पाएंगे कि एक मतलब एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए कहीं भी इलेक्ट्रॉन थोड़े से ज्यादा हो गए तो वहां हल्का सा माइनस, उल्टी साइड में प्लस। सेकंड के दूसरे करोड़वें हिस्से के लिए हो सकता है उल्टा हो जाए, कहीं और चला जाए। एवरेज देखेंगे, एक सेकंड पर भी एवरेज देखेंगे तो कहीं कोई चार्ज नेट नहीं है, कोई डायपोल नहीं है। लेकिन किसी एक मोमेंट पर देखेंगे तो जस्ट किसी एक इंस्टेंट पर बिल्कुल संभव है कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम में थोड़ी सी
ज्यादा कहीं थोड़ी सी कम हो जाए तो हल्का सा एक डाइपोल रह जाता है,
जो बहुत कम, बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल है। अच्छा, तो हमारे पास कुछ तो परमानेंट डायपोल्स थे, कुछ इंड्यूस्ड डायपोल हो सकते हैं और कुछ इंस्टेंटेनियस डायपोल हो सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के अलग अलग तरह के इंटरेक्शन हम सोचते हैं। जैसे ये आपके सामने है 5 अलग अलग विभाग। कौन से? हो सकता है पहले का बना बनाया आयन दूसरे आयन से इंटरेक्ट करे, अरे तब तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एग्जैक्टली, उसको छोड़ दीजिए, तो मेन बॉन्ड नहीं है। आयन अगर एक परमानेंट डायपोल से अट्रैक्ट हो जाए, हाँ जी, आयन और परमानेंट डायपोल, या आयन एक इंड्यूस्ड डायपोल के संपर्क में आए, आयन के साथ इंड्यूस्ड डायपोल, ये दो परमानेंट डायपोल, जी हाँ बिल्कुल। फिर परमानेंट डायपोल अगर किसी दूसरे पड़ोसी में इंड्यूस कर दे तो परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। इंड्यूस्ड नहीं हो सकता, क्यों? एक दूसरे को इंड्यूस करेगा ना, तो परमानेंट वाला ही दूसरे को इंड्यूस कर सकता है, तो इंड्यूस का मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ भी ना हो तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल तो हो ही सकता है कि भाई पड़े पड़े अपने आप डायपोल पैदा हो गया, और जब ये हुआ तो उसने पड़ोसी में इंड्यूस कर लिया, फिर उससे अट्रैक्शन हो गया। यस, तो इस तरह से 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कौन कौन से? आयन के साथ परमानेंट या इंड्यूस डायपोल, ठीक है, डायपोल के साथ दूसरा डायपोल, ठीक है, फिर उसके अलावा परमानेंट डायपोल के साथ इंड्यूस डायपोल, बिल्कुल, और इंस्टेंटेनियस के साथ कैसा? इंड्यूस डायपोल, बिल्कुल, राइट। दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इनको कुछ अलग नाम से बुलाते हैं। हाँ, आयंस को तो छोड़ दीजिए, और अगर परमानेंट डायपोल इंटरेक्शन है, कीसम फोर्सेस बोलते हैं उन्हें। ये सब वैज्ञानिकों के नाम है, उनके सम्मान में रखे गए हैं। फोर्सेस या परमानेंट डायपोल शॉर्टकट में पीडी फोर्सेस या इंटरेक्शंस, ये है कीसम फोर्सेस। ठीक है, परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल का इंटरेक्शन, एक परमानेंट डायपोल है, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल है, इनका जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है डीबाय फोर्स। अच्छा, और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल ये कहलाते हैं लंडन फोर्सेस। इनको एक और नाम दिया जाता है डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस इज सेम एज लंडन फोर्सेस, दिस टर्म इज सेम एज लंडन फोर्सेस। ठीक है, वो तो ठीक है, पर कोई मेजरमेंट है इनका, कोई एग्जांपल से थोड़ा सा समझा दीजिए। बताते हैं। डायपोल डायपोल अट्रैक्शन किसमें होता है? आपने देखा ही था, जब हमने डायपोल मोमेंट निकाले थे तो मॉलिक्यूल था, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, हमने क्या कहा था कि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस अट्रैक्शन हो सकता है। हाँ जी, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये वो पीडी अट्रैक्शन या कीसम फोर्सेस हैं। ठीक है, और किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी, हमने 5 वैरायटी बोली है, कभी भी अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही है तो गैसेस में आयंस तो नहीं होते, और उसके अलावा जो 3 बचे हैं, कौन से? कीसम फोर्सेस, डीबाय फोर्सेस या लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर गैस कभी लिक्विड बन रही है तो इन्हीं फोर्सेस के कारण बनती है। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र इंटरैक्शन है या अट्रैक्शन है जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बच गया है। अच्छी बात है। तो जैसे अगर आप डायपोल मोमेंट या अट्रैक्शन देखिए, पीडी अट्रैक्शन किस किस तरह से हो सकता है, एक बार पहले यहाँ देखते हैं, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, पहले इसको देखिए। पीडी अट्रैक्शन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। टेल टू टेल, जिसको हेड टेल अरेंजमेंट बोलते हैं, कि एक प्लस और माइनस फेस कर रहे हैं, ठीक है, आमने सामने आ रहे हैं, हेड ऑन आ रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, प्लस माइनस फेस करें तो अट्रैक्शन होगा, सिमिलर चार्जेस करें तो रिपल्शन हो सकते हैं, एक के नीचे एक आ गए तो प्लस माइनस का पेयर वाइज अट्रैक्शन रिपल्शन ऐसे भी हो सकता है, जो डबल मचा है, मतलब डबल अट्रैक्शन है, डबल भयंकर रिपल्शन, और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहेंगे उनमें इस तरीके से। और ओवरऑल जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अगर उनको आप सम अप करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह स्थिर होते तो उनमें इंटरेक्शन की जो एनर्जी थी, दैट वाज प्रोपोर्शनल टू, या इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, और सच तो है कि वो रोटेट करते अगर ऐसे मान लेंगे तो देन इंटरेक्शन घट जाएगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th पावर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, हाँ याद रखने हैं, सुन लीजिए, ध्यान रह जाए तो अच्छा है। ठीक, इस तरह से
अच्छा, इसी में अगर आपके पास डायपोल और दूसरा परमानेंट न होकर इंड्यूस्ड डायपोल होता, पीडी आईडी इंट्रैक्शन, आईडी इंड्यूस्ड डायपोल का अट्रैक्शन, ठीक है। इसमें एक मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर, और दूसरा कैसा होगा, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा। कैसे कैसे खींचेगा, जैसे जैसे देखिए कैसे खींच रहा है, ये इधर आया और जो गोल स्फेरिकल वाइट था वो हल्का सा मुड़कर इधर आ गया है। आप देखें इस तरह से, ठीक है। ये कैसा है, एक पोलर एक नॉन पोलर है, और परमानेंट और इंड्यूस्ड डायपोल यहां पर आप देख सकते हैं, राइट। चलिए अब और चीज देखिए, इसमें इंड्यूस्ड डायपोल कितने मजे से इंड्यूस हो जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा पोलराइजेबल होगा, इनफैक्ट जब बड़ा साइज बढ़ जाता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है उस तरीके से है। तो जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, आप पाएंगे इजीली बन जाएगा इंड्यूस्ड डायपोल, और अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे अगर मान लीजिए नोबल गैसेस हैं, हाँ जी, और हम देखना चाहते हैं कि वो पानी में कितना घुलती हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। अगर आप गेस करना चाहते हैं, पहली बात तो पानी में ज्यादा सॉल्वेंट तो कोई भी नहीं है, पर फिर भी अगर कंपेयर करना चाहेंगे थोड़ी सी, पर कौन ज्यादा घुलेगी, मिनिमम कौन घुलती है, हीलियम, मैक्सिमम कौन घुलती है, ज़ेनॉन या उसके नीचे रेडॉन। अच्छा, रेडॉन उसके नीचे अलग से क्यों बोला, रेडॉन बहुत अनस्टेबल होती है तो उसके एक्सपेरिमेंट थोड़े मुश्किल होते हैं। उपलब्ध डेटा ज़ेनॉन के लिए आराम से मिल जाएगा, पर रेडॉन भी उससे थोड़ी ज्यादा ही होगी निश्चित रूप, अगर जिंदा रह जाए तो आप ये देखेंगे कि कैसे बोल दिया इससे, इस तरह से, जैसे जैसे साइज बढ़ जाएगा नोबल गैस का, वैसे वैसे उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे इंड्यूस्ड डायपोल बढ़ जाएंगे। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मजे से पानी में घुल जाएगा और सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये तो हम नहीं कह रहे थे, राइट। सुंदर एग्जाम्पल है, सरल खूबसूरत। देखिए ये तो थे पीडी आईडी इंट्रैक्शंस। अब आईडी आईडी मतलब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनकी बात करी थी फ्रिट्ज लंडन जी ने, जिनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। और आप देखें ये कैसे हैं, अगर एंटायरली नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, जैसे नोबल गैसेस ही हैं, या O2 है, N2 है, F2Cl2, Br2, H2, इस तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कैसा अट्रैक्शन होगा इनमें। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रकट हुआ है वो किसी को इंड्यूस करके आपस में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन करा लेगा, उसी से होता है। क्या ये सिग्निफिकेंट है, जरूर। क्यों, ये अपन को पता है कि सब सारे पदार्थ ठंडा करने पर पहले लिक्विड बनते हैं, फिर सॉलिड बन जाते हैं। इसका मतलब अट्रैक्शन तो होगा, और कुछ नहीं है तो यही होगा, और इसके सिवा हो भी क्या सकता है, ठीक है। अच्छी बात, वी नॉट कंप्लेनिंग ना। जो मोमेंटरी इम्बैलेंस आता है, सब तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड बराबर से हमेशा नहीं होते, हल्का सा कभी एक निमिष मात्र के लिए, सेकंड के करोड़ों हिस्से के लिए, जैसा हमने कहा था, मान कहीं डेल्टा प्लस किया, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, माइनस आ गया, उल्टी तरफ हल्का सा प्लस आ गया, इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रकट हो गया, किसी पड़ोसी के पास रहेगा, उसमें इंडक्शन करा देगा, इंड्यूस्ड डायपोल आ गया, अट्रैक्शन हो गया। ये बहुत सिग्निफिकेंट फोर्सेस नहीं है, आप देख सकते हैं कम ही महत्व होता है इनका। मॉलिक्यूल अगर 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट या उसके पास रहे तभी ये महत्वपूर्ण है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस जाने पर इनका महत्व बहुत ही घट जाता है। ये देखिए इंस्टेंटेनियस डायपोल, जिसने एक पड़ोसी में डायपोल इंड्यूस कर दिया, ठीक है। जैसे ये क्या है, हीलियम के 2 एटम्स हैं, फाइन, एक में इंस्टेंटेनियस डायपोल प्रकट हुआ, बिल्कुल प्लस माइनस, और जैसे ही चार्जेस आए वैसे ही उसने पड़ोसी पर इंडक्शन कर दिया, यस, और यहां पर ये आईडी आईडी इंट्रैक्शन चालू हो गया। अच्छी बात है। हाइड्रोजन में क्या होगा, सिमिलर है, उसमें तो एक एटम, तो यहाँ मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन में खसकना तो वैसे ही रहेगा, और डिफॉर्मेशन और अट्रैक्शन बिल्कुल उसी तर्ज पर फिर से हो जाएगा। Magnitude of London forces is inversely proportional to 6th power of separation. जी हाँ, यही नहीं, it is directly proportional to polarizability also. जैसे जैसे polarizability बढ़ जाएगी, वैसे वैसे London forces या dispersion forces बढ़ जाएंगी। Perfect, ठीक है। क्या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं, हाँ फोर्स कर सकते हैं। कैसे, बॉइलिंग पॉइंट जो है, किसी भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे, एक वॉन डर वाल्स फोर्सेस पर, आपस के अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, वॉन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो अधिक टेम्परेचर चाहिएगा बॉइल करने के लिए या इवेपोरेट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वॉन डर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोलर मास।
ऐसा क्यों? मॉलिक्यूल्स भारी हो जाते हैं अगर, तो उनके लिए तेजी से भागना मुश्किल हो जाता है। अगर तेजी से भाग नहीं रहे हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं, तो एक दूसरे के अट्रैक्शन की चपेट में आराम से आ जाते हैं और धड़ाम से कंडेंस वजह से हो जाते हैं। जैसे जैसे उनका मोलर मास बढ़ जाता है, उनकी वेलोसिटीज कम हो जाती हैं। उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जल्दी से प्रबल हो जाते हैं और उसकी कंडेंस होकर लिक्विड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। राइट? कोई एग्जाम्पल है? हाँ, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। सबसे मशहूर एग्जाम्पल तो पहले इसका देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कैसा है? लगातार नीचे जा रहे हैं, भारी होता जा रहा है। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड होती है बकायदा। क्यों? इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखिए, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहे हैं। कारण, एक तो वजन बढ़ने के कारण खसकना मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल, और दूसरा साइज बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मोलर मास भी और डिस्पर्शन फोर्सेस भी जैसे जैसे बढ़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है। इसी बात पर एक बार आइसोटोप्स को देख लीजिए। अगर आपके पास है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, एक जैसे हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियस फर्क है, पर मॉलिक्यूल तो HH, DDT लगभग एक जैसा मॉलिक्यूल है। डिस्टेंस, रेडियस वगैरह सब लगभग एक जैसी होती है। फर्क किसका है? फर्क है वजन का। जैसे जैसे भारी होते जाएंगे मॉलिक्यूल, उनकी लिक्विड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 20 है, 23 है, 25 केल्विन है, हल्का ही सही पर बढ़ गया है। क्यों? वजन बढ़ गया है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, जैसा हमने कहा था। फाइन, चलिए। तो लंदन फोर्सेस, जैसा हमने अभी देखा, वो पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। जी हाँ, और पोलराइजेबिलिटी रेडियस पे या सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल। क्यों? आप देखिए, जैसे सर्दियां हैं अगर, तो लोग कहते हैं कि वो ऐसे करते हैं, क्यों? हाथ में गर्मी आ रही है, हाथ को वार्म कर, ऐसे ऐसे तो नहीं करते। क्यों? सरफेस एरिया कम है तो उतना रगड़ नहीं खाएगा, उतना इंट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, वैसे वैसे लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे। दोनों ही ऑर्डर्स हम जैसे देखें, इनको देख लीजिए आप अच्छे से भर के। हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे जैसे इधर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों? भारी होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। CH4, मीथेन, सिलेन, जर्मेन, स्टैनेन, प्लम्बेन डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। खूबसूरत है ये, शानदार है ये। अगर मॉलिक्यूलर मास मिलता जुलता है, सेम है, तो क्या फैक्टर है? तो फैक्टर ऑफ कोर्स हो जाएगा पोलराइजेबिलिटी और क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। अच्छा, ऐसा भी है। क्यों? जैसे जैसे सरफेस एरिया अभी बोला था ना बढ़ेगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कोई एग्जाम्पल है? बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसका हाइड्रोकार्बन में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये क्या है? आप देखेंगे जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जो ये जो टर्शरी एटम है, क्वार्टरनरी एटम है, ये बीच में फंस गए हैं, ये सरफेस पे नहीं है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीजेस, surface area decreases, therefore London forces decrease. अगर हाइड्रोकार्बन्स की तुलना कर रहे हैं, बाकी सब सेम है, मोलर मास सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या बोलेंगे? जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। लेकिन ब्रांचिंग अगर बढ़ाओगे, तो जब जहां ब्रांचिंग हो रही है, मेन ब्रांच से साइड ब्रांच निकल रही है, तो वहां टर्शरी क्वार्टरनरी एटम्स बन जाएंगे, जो कि सरफेस पर नहीं है, वो बीच में घिरे बैठे हैं। तो सरफेस एरिया कम हो रहा है। मोर द ब्रांचिंग, लेसर द सरफेस एरिया, लेसर द डिस्पर्शन फोर्सेस, लेसर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर ऐसा आ जाएगा। राइट? इस तरह से, जैसे यही हम बात कर रहे थे, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए आपके पास एक और मजेदार चीज है। कौन सी? अगर आपके पास है अल्केन्स या फ्लोरोअल्केन्स। फ्लोरोअल्केन्स, इसमें सारी हाइड्रोजन हटाकर सारी जगह फ्लोरीन लगती गई है। CN H2n+2 और H की बजाय F2n+2। पहले है हाइड्रोकार्बन और दूसरे हैं फ्लोरोकार्बन्स। ठीक है?
डू यू सी कि ओवरऑल नॉन पोलर तो हो ही जाएंगे दोनों लगभग लगभग? हाँ जी। तो अगर क्यों? क्योंकि CF बॉन्ड के वेक्टर्स कट कुटा के भी नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें इनमें भारी कौन है? H की बजाय F भारी है, तो अगर N की वैल्यू सेम है तो आप ये अपेक्षा बिल्कुल कर सकते थे कैसा कि जो भारी है, नॉन पोलर दोनों ही है, मोलर मास जीरो है, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो आप देखो अगर CH4 या CF4 है इस तरह से, तो आप देखोगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों? भारी है। ऐसे ही C2H6 और C2F6 को देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जैसे अगर C2H6 और C2F6 को देखेंगे तो C2F6 आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यहाँ पर देखिए गाड़ी पलट जाती है, क्यों? एक लिमिट तक। कहां तक? आप देखेंगे N 4 या 4 से कम हो तो आप पाएंगे मोलर मास सबसे डोमिनेंट फैक्टर है, जिसका वजन है ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा। उसके बाद क्या किया है? उसके बाद थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। आप देखते हैं उल्टे फ्लोरोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट हल्का कम हो गया है, बजाय किसके? उनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के। भारी होने के बावजूद, जी हाँ, भारी होने के बावजूद। क्यों? इतनी सारी फ्लोरीन्स हैं, बहुत सारी फ्लोरीन्स हैं। हर फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में रिपेल करने लगते हैं। जब रिपेल करने लगते हैं तो आप पाएंगे रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गए, अट्रैक्शन कम हो गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एक लिमिट के बाद। लेकिन ध्यान रखना ये रटने का डेटा नहीं है। हाँ, अगर किसी ने आपको डेटा दे दिया है कि ऐसा है तो उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल। हीलियम और हाइड्रोजन को देखेंगे, बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन 20 केल्विन है और हीलियम खाली 4.2 केल्विन है। क्यों? हीलियम बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल है, तो उससे सिमेट्रिक और कुछ भी नहीं है। मिनिमम सरफेस एरिया है और मिनिमम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम है। H2 में पोलराइजेशन फिर भी आसान है, बजाय किसके? हीलियम के। क्यों? HH कम से कम 2 एटम तो हैं, वहां तो एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए सिमेट्री बहुत अच्छी है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फ्लोरीन एंड HF। अच्छा, फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन का म्यू 0 है, ये नॉन पोलर है। तो इसमें इसमें कैसे होंगे? इसमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन होंगे। और HF कैसा है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें PD अट्रैक्शन होगा, इसमें ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा HF का बजाय फ्लोरीन के। ठीक है, नाउ ऑर्डर क्या है? PD अट्रैक्शंस ज्यादा है, उससे कम है PDID, और सबसे कम है डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस इन जनरल, राइट? ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात और, जिसमें PD इंट्रैक्शन है, क्या उसमें PDID और IDID हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। जैसे आसमान में सूरज है तो चांद और तारे हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। पर सूरज की इतनी रोशनी होती है कि चांद तारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और चांद की तो खुद की रोशनी है भी नहीं बेचारे की। तो ठीक वैसे ही अगर ये सारे फोर्सेस हैं, अगर मॉलिक्यूल पोलर हैं, तो उनमें PD अट्रैक्शन सबसे डोमिनेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें PDID और IDID नहीं है, होते हैं, जस्ट वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो उनकी बातें नहीं करते। ये है। तो कोई पूछ से मात आ जाएगी क्या ये है? हाँ है। लंदन फोर्सेस तो हमेशा होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। ये तो 5 में से 3 बात करी हमने, कौन से? कीसम फोर्सेस, डीबाई फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। और पहले 2 जो थे, कौन सा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। वो कैसे है? आइए देखिए। है तो सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही। जैसे अगर मान लीजिए आपने पानी में नमक खोल दिया, क्या आपके पानी में नमक है? हाँ है, खोल दिया है, क्या होगा? सोडियम कैटायन है, क्लोराइड है। जी हाँ, तो सोडियम कैटायन और अलग अलग चाहते हैं कैटायन एनायन। Anion is surrounded by many water molecules. Cation also is surrounded by many water molecules, पर अलग डायरेक्शंस में। प्लस माइनस वालों के साथ रहेगा और माइनस प्लस के से घिरा हुआ रहेगा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? हम कहते हैं कि कैटायन और एनायन सॉल्वेट हो गए या हाइड्रेट हो गए सॉल्यूशन में घुलने पर। फाइन। कितनी स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की? इट डिपेंड्स ऑन ऑफ कोर्स चार्ज ऑन द आयन। जैसे जैसे चार्ज ज्यादा होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या रेडियस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा।
ये दोनों चीजें एक साथ कंबाइन करके लोग बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी, और स्टाइल मारे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज बाय सरफेस एरिया। ऐसे डिवाइड करके सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। जैसे जैसे ज्यादा हो जाएगी आकर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही नहीं, ये एक तो आयन हो गया, दूसरा डायपोल भी है। डायपोल में जैसे जैसे म्यू बढ़ता जाएगा, डायपोल मोमेंट म्यू बढ़ेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट को तो डिफाइन इसलिए किया गया था इंट्रैक्शन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे पानी में नमक घोल दिया, तो सोडियम के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल, क्लोराइड के साथ कुछ पानी के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं इन्हीं फोर्सेस के चलते। कैसे? ऐसे देखिए, 6 मॉलिक्यूल आ गए, हाँ, ऐसे आते हैं। वैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आते हैं। कैसा? ये सोडियम है, और आप देखें डायग्राम सुंदर है, प्रतीकात्मक है, और फैक्चुअल नहीं है। अगर आप प्रॉपर 3D में देखेंगे तो यहां से और यहां से ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री में 6 पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेंगे किसे? सोडियम को, और वही 6 घेर लेंगे क्लोराइड को भी। वैसे ही देखिए इस तरह से। हाँ, ओरिएंटेशन उल्टा रहेगा, वो अलग बात है। ये तो था आयन परमानेंट डायपोल। अब आयंस के साथ इंड्यूस्ड डायपोल भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे? अब आप देखिए, आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस भी कर सकते हैं। हाँ, पता है हमको, तो इतनी बात कर ही चुकी हैं, ठीक है। जैसे देखिए, माइनस चार्ज था, करीब आया और उसने एक पोलैरिटी इंड्यूस कर ली। कैसे? उसके रिपल्शन से चार्ज पलट कर उल्टी तरफ चला गया, तो यहाँ पे बढ़ गया माइनस, और यहाँ प्लस आ गया, प्लस का फ्रैक्शन हो गया। कोई उदाहरण है इसका? जी हाँ, बहुत खूबसूरत उदाहरण है। पॉलीहैलाइड आयंस बनते हैं। कौन से? जनरल फॉर्मूला है X3-, जैसे BrICl-। वाह, ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है। अगर मान लीजिए आपके पास है जैसे आयोडीन का मॉलिक्यूल II, और एक I- उसके करीब आ गया, ठीक है। एक है आयन I-, और दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, करीब आए। नॉन पोलर में हल्का सा इलेक्ट्रॉन रिपेल किया, एक तरफ शिफ्ट किया, और वो यहां से हल्का हल्का जुड़ सा जाता है, बना लेता है I3-। इस तरह से देखिए आप, जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाएगी वैसे वैसे बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। जरूर I3- में I2 ज्यादा पोलराइजेबल है, हाँ जी, क्योंकि वो ज्यादा पोलराइजेबल है, तो आप देख सकते हैं कि I3- विल बी मोर स्टेबल। ब्रोमीन से अगर Br3- बनाएंगे तो कम बनता है, मुश्किल से बनता है, और क्लोरीन तो Cl3- प्रैक्टिकली नहीं ही बनाती है। क्यों? अगेन पोलराइजेबिलिटी कम होगी, तो ये आयन डायपोल इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, या इंस्टेंटेनियस डायपोल, सॉरी, आयन और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक बार इतने सारे अट्रैक्शंस की बात करी, तो एक बार ग्रैंड समरी देख लेते हैं, वही कहां कहां क्या था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय कूलॉम्स लॉ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में जहां प्रॉपर प्लस माइनस चार्जेस हैं, जो डिस्टेंस डिपेंडेंस है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है। आयन डायपोल, एक तो आयन है, दूसरे में डायपोल लगा दिया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। डायपोल डायपोल R³। आयन और इंड्यूस्ड डायपोल R⁴। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। 5 नहीं है, नहीं। और लंडन फोर्सेस, दे आल्सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R⁶। ऐसे है, ध्यान रहेंगे, मजेदार है। आप देखिए ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। सबसे तगड़ा तो था आयन, क्योंकि आयन पे चार्ज ज्यादा है। उधर डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल में ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, डायपोल इंड्यूस्ड काफी कम होता है। तो आयन और डायपोल गोल्डन कॉम्बिनेशन सबसे अच्छे हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसके बाद डायपोल डायपोल, ठीक है। ये परमानेंट आयन, परमानेंट डायपोल, फिर पीडी पीडी, फिर आयन के साथ आईडी, अच्छा, और फिर परमानेंट डायपोल के साथ इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। आप देखो बड़ा मजेदार है, आई और पीडी, यहाँ पीडी पीडी, और यहाँ आईडी आईडी, ऐसे। इट्स काइंड ऑफ पैटर्न यू कैन सी। एंड फाइनली द मिनिमम इज आईडी आईडी। आईडी आईडी कैसे? इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस दोनों आई सेम नहीं है, एक है इंस्टेंटेनियस और दूसरा है इंड्यूस डायपोल। इस तरह से है।
And let us take this opportunity to examine a very very interesting order of boiling points. मान लीजिए आप boiling points कंपेयर कर रहे हैं HF, HCl, HBr और HI के. क्या एक्सपेक्टेड है आपसे? आपसे मतलब HF, HCl, HBr, HI से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए था? वेल, आप कह सकते थे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा. हाँ होगा, ठीक है. अच्छा, डाइपोल मोमेंट म्यू का ऑर्डर क्या है? अगर म्यू का ऑर्डर देखेंगे HF, HCl, HBr, HI ये ऑर्डर है. सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है HF का, उससे कम HCl, उससे कम HBr, उससे कम HI का. ठीक है. तो वैसे तो फील आती है कि भाई HCl, it should be more than HBr, HBr should be more than HI. पर एक्चुअली अगर आप एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर देखें तो आपको बहुत मजेदार ऑर्डर दिखता है. ये है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोलर मास. आप देखेंगे आएगा HF, HCl, HBr और HI. HF ज्यादा है, HCl कम, HBr, HI थोड़े थोड़े ज्यादा. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो है किसका? HF का. सबसे कम HCl का. HCl से HBr से HI बढ़ रहा है. अरे कैसे बढ़ रहा है? मोलर मास बढ़ रहा है. अच्छा, तो आपने देखा इसका मतलब यहां पर म्यू डोमिनेट नहीं करता, यहां मोलर मास डोमिनेट कर रहा है. प्लीज नोट, ये प्रेडिक्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा कोट करा है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट नापें और देखें तो ये ऑर्डर आएगा. मैंने ये नहीं कहा कि आप बॉइलिंग पॉइंट प्रेडिक्ट करो. ठीक है, लेकिन इसमें भी एक बड़ी गड़बड़ थी. क्या? HF पर वो लॉजिक क्यों नहीं लगा? HF ऊपर निकल गया और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका. तो क्यों? आप कहते हो उसमें म्यू डोमिनेट कर रहा होगा. तो जब यहां म्यू डोमिनेट नहीं कर रहा तो फिर HF में क्यों कर रहा होगा? कुछ तो गड़बड़ है HF में, ऐसा लगता है. ठीक है, एक और खानदान देख लेते हैं. कौन सा? ऑक्सीजन का. उसमें क्या होगा? जगह कम है तो इसको इरेज करके फिर यही बना लेते हैं. तो मान लीजिए HF, HCl, HBr, HI जैसी मान लीजिए अपने पास है पानी H2O. तो हमारे पास है H2O, फिर हमारे पास है H2S, फिर है H2SC और फिर है H2TE. हाँ जी, बिल्कुल मजेदार है ये, बहुत ही मजेदार है. H2O, H2S, H2SC और H2TE. हाँ जी. अब क्या है इसमें? अब इसमें आप ये देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट H2S, H2SC, H2TE ये बॉइलिंग पॉइंट उत्तरोत्तर बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? वजन बढ़ रहा है. अरे तो फिर H2 वहां HF भी ज्यादा था, यहाँ H2O भी ज्यादा है. इनमें कुछ खास है क्योंकि HCl पोलर नहीं है पर वो तो नीचे आ गया था. हाँ आ गया था. HF में कुछ स्पेशल था, HCl, HBr, HI में वो स्पेशल नहीं था. ऐसे पानी में कुछ स्पेशल है, H2S, H2SC, H2TE में वो खास नहीं है. एक तीसरा ग्राफ और देख लीजिए. खरामा खरामा, इस बार हम बात कर रहे हैं अमोनिया के खानदान की. कैसा? NH3. हाँ जी. फिर PH3 तारे जमीन पर, फिर ASH3 और मजे की बात है थोड़ा SbH3 थोड़ा यहां निकल जाता है ऐसे. धोखा धोखा, बाकी सब नीचे थे. अमोनिया उतने ऊपर नहीं जा पाई पर फिर भी थोड़ी तो ऊपर है. PH3, ASH3, SbH3 मोलर मास बढ़ रहा है. SbH3 में वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अमोनिया से भी ज्यादा हो. बट नॉनदलेस एबनॉर्मेलिटी अमोनिया, पानी, HF में कुछ अलग है. कुछ ऐसा है जो बाकी वालों में नहीं है. कहने को तो डाइपोल मोमेंट सबके ही हैं, डाइपोल मोमेंट सबका ऑर्डर नीचे कम हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो है. पर यहाँ कुछ ऐसी चीज है जो अब तक पकड़ में नहीं आई. क्या है? एक नई चीज है, बताता हूं आपको, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. व्हाट? जी हाँ, एक बड़ा खूबसूरत फिनोमेना होता है जिसे दुनिया कहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये क्या है? अगर आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम है जो जुड़ा है F या O या N, जो जुड़ा है F या O या N या किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसी किसी स्पीशीज से. अच्छा, तीन ही है ऐसी तो वैसे. हाँ, तो क्या होगा? उस हाइड्रोजन एटम के पास अथाह डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा और यहीं पर F या O या N ऐसा है जिनके पास लोन पेयर भी है. हाँ जी, बिल्कुल. तो उन पर डेल्टा माइनस चार्ज है.
बिल्कुल। तो अगर एक के पास है डेल्टा माइनस और एक के पास है डेल्टा प्लस, तो क्या आप देख सकते हैं कि इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है? ऑफ कोर्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं, परमानेंट डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, इसमें कुछ अलग से स्टाइलिश अद्भुत बात है। क्या बात है? ये बॉन्ड औरों से कुछ अलग है। आपको कैसे पता? वही तो बोल रहा था, अलग ना होता तो यहाँ पे एबनॉर्मली पानी, HF या अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट औरों से एबनॉर्मली ज्यादा न होता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमानेंट डायपोल पीडीपीडी अट्रैक्शन में भी एक स्पेशल केस है, मोस्ट स्पेशल केस है। किसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है पीडीपीडी अट्रैक्शन की। इसमें एक एटम होता है डेल्टा प्लस वाली हाइड्रोजन का, वो हाइड्रोजन जो जुड़ी है NOF या ऐसे ही इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक जुड़ी है किसी और एलिमेंट से, ग्रुप ऑफ एलिमेंट से। ठीक है। और दूसरा डेल्टा माइनस चार्ज है जो है NO या F पर। प्लीज नोट, NO या F पर ही डेल्टा माइनस चाहिए, दूसरे पर नहीं चलेगा। और शर्त यह भी है कि उनके पास लोन पेयर भी होना चाहिए। किसके पास? NO या F के पास। और अगर उनमें आपस में आप पीडीपीडी अट्रैक्शन देखेंगे तो वो स्पेशल है, काफी हाई है, उसका अलग से नाम है, लोग कहते हैं प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, अच्छी बात है। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रेंथ होती है इसकी? नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड 130 टू 150 किलो जूल्स पर मोल हमने बोला था। हाँ जी। इसका बमुश्किल 10, बहुत हुआ तो 20%, इससे ज्यादा माया नहीं है। तो आप देखेंगे 8 से 42 किलो जूल पर मोल ऐसे लिखा है, बहुत एक्यूरेट वैल्यूज ये भी नहीं है। रफली 10-20 किलो जूल पर मोल के आसपास मोस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो आप देखते हैं वो होती है। अच्छा, ये तो काफी लल्लू हैं एक बॉन्ड के मुकाबले। जी हाँ, कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले इनकी इज्जत कम है, लेकिन दूसरे वॉन वॉल्स फोर्सेस के मुकाबले इनकी इज्जत ज्यादा है। तो ये न मनुष्य है न देवता, ये बीच में गंधर्व टाइप तैर रहे हैं। अच्छी बात है। इससे फर्क पड़ता है बहुत बेतहाशा। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इवन केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से गवर्न होती हैं। कैसे? पहले समझ जाइए एच बॉन्डिंग, फिर देखते हैं आगे। जैसे अगर आप देखें HF का मॉलिक्यूल है, तो HF में आप देखिए कैसे अट्रैक्शन है, इस तरीके से। F पर डेल्टा माइनस है, उस पर लोन पेयर है, और वो H एटम को अट्रैक्ट करके ऐसे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का अट्रैक्शन रहेगा, इस तरह से। शर्त यही है H जुड़ी हो FO या N से, Cl से चल जाएगी, मोस्टली नहीं चलती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl और N की सेम है, पर Cl का एटम बड़ा है, और बड़े एटम के चलते अट्रैक्शन कम हो जाता है और बस ऑफ हो जाता है। Cl के साथ सिग्निफिकेंट अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अगर होती तो HCl बिल्कुल बॉटम पे ना, तो बॉइलिंग पॉइंट्स में। राइट? अच्छी बात है। अब आप देखिए H बॉन्डिंग कब होगी बढ़िया? सॉलिड स्टेट में या लिक्विड में या गैस में? सॉलिड स्टेट में एटम अपनी जगह फिक्स्ड होते हैं, सबसे बढ़िया डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, हमेशा एच बॉन्डिंग मेंटेन हो सकती है। जैसे कि बर्फ में, आइस में HOH मॉलिक्यूल मस्त एच बॉन्डिंग करके अपने साथ अटैच रख सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। इसी की बजाय अगर वो लिक्विड में आ गया तो मॉलिक्यूल जाएंगे आएंगे तो एच बॉन्ड बनेगा, टूटेगा, ऐसे है। पर फिर भी लिक्विड में सॉलिड से कम है, कुछ तो है। गैस बन जाएगा तो बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल नाचने लग जाएंगे, और करीब आए तो एच बॉन्डिंग हुई, दूर चले गए टूट गई, तो इज्जत बहुत डाउन हो जाएगी। तो सॉलिड से सबसे अच्छी है सॉलिड में, उससे कम है लिक्विड में, और बहुत नेग्लिजिबल बच जाती है किसमें? गैस फेज में, अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो। ठीक है, मत भूलना फिर से, एच बॉन्डिंग की इज्जत काफी कम है किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट बॉन्ड तो मिनिमम 150 से 130 से 150 वो मिनिमम था। आमतौर पर 200 और हद से हद तो 450 तो ये सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ रखी है। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड तक चले जाए तो 1000 किलो जूल पर मोल तक चले जाता है कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की इज्जत बहुत डाउन है, वो तो कितना, आप देखिए 10, 20, 30 किलो जूल पर मोल। 42 लिखा है, बट ठीक है, इस तरह से। एक आध मजेदार केस है, वो देखना पड़ेगा। कौन सा? मान लीजिए F माइनस है और HF है। HF के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, हाँ जी। और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि एक मिनट, HF के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, जी हाँ। और आप देखेंगे कि F माइनस के साथ
दूसरे F माइनस के साथ उसने क्या कर रखा है, उसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा किस्म का बना रखा है। अच्छी बात। अब आप यहां देखिए, ये H बॉन्डिंग है, बिल्कुल एक है कोवलेंट और एक है H बॉन्ड। अगर आप उसे रेजोनेंस स्टाइल में इमेजिन करें, इधर कोवलेंट और इधर H बॉन्ड बना लेते तो भी पाप में लगता। और हकीकत में क्या होता है, हकीकत में बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाता है। रेजोनेंस मामला है। आप देखेंगे पार्शियली दोनों एटम्स हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं और पार्शियली दोनों एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। ठीक बीचों बीच स्थित है हाइड्रोजन, माइनस हाफ चार्ज है फ्लोरीन पर, और जो बॉन्ड है दोनों का वो कोवलेंट से लंबा है और H बॉन्ड से छोटा है, बस बीचों बीच है। इस तरह का मजेदार सिमेट्री अटेन करने के लिए डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट भी लगाकर आप ऐसे उसे मिक्स भी कर सकते हो, किसके साथ, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। आप देखिए यहाँ पर दोनों HF बॉन्ड्स की एनर्जी तोड़ने की वैल्यू दे रखी है कितनी, 163 किलो जूल्स पर मोल। तो बट अगेन प्लीज नोट, ये इंटरमीडिएट है। कैसे, आपने कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच की स्थिति निकाली है, इसलिए बीच की वैल्यू है और ये काफी ज्यादा प्रतीत होती है एक साधारण औसत हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्यों, इसमें कोवलेंट बॉन्ड का तड़का लग गया इसलिए। ठीक है। दो शब्द आते हैं, एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरनेशनल, नेशंस के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में। ट्रा ट्रा का मतलब बाकी तो सब सेम है, ट्रा और टर, ये देखिए, है ना। इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल में ही अंदरूनी एडजस्टमेंट हो जाए। जैसे जैसे देखिए, बड़ा खूबसूरत बेंजीन का मॉलिक्यूल है, OH डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहां OH डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। अट्रैक्शन है, OH का अट्रैक्शन है, और ये क्या है, ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अच्छा उदाहरण है, एक बार और देख लीजिए। बेंजीन रिंग इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें ऑर्थो पोजीशन पर ही इंट्रा इज पॉसिबल, और मेटा और पैरा पे अगर आ गया, मेटा या पैरा पे आ गया, तो इंट्रा इज नॉट पॉसिबल। क्यों, वो मॉलिक्यूल घूम के और उल्टा उल्टा जा नहीं सकता, क्योंकि एक आजू बाजू से कर लिया, एक इधर है, नहीं आ सकता, और उल्टा है तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मेटा और पैरा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाते हैं, पास पास नहीं आ पाते, इसलिए। एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इंटरमॉलिक्यूलर। अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को देखिए, CH3COOH, यहां डेल्टा प्लस चार्ज, यहां डेल्टा माइनस चार्ज। तो ये डेल्टा माइनस इन दोनों पर ही, ऑफ कोर्स यहां इसका अट्रैक्शन है और यहां इसका। ऐसे देखिए, एक H बॉन्ड और दूसरा H बॉन्ड। एसिटिक एसिड अगर बेंजीन सॉल्वेंट है, द नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमराइज कर जाते हैं। ठीक इसी तरह से वाई, अगेन दिस शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहीं पर या ये है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण। एक बहुत मजेदार हेक्सामेरिक बोरिक एसिड को देखिए। व्हाट, जी हां, आप देखें 6 मॉलिक्यूल्स हैं बोरिक एसिड के, B, OH, OH और OH। ये एक बोरिक एसिड, अगर आप गौर करें तो। ऐसे ही अगर आप देखें तो यहां पर है दूसरा बोरिक एसिड, OH, OH और OH से, और ऐसे ही आप देख सकते हो तीसरा बोरिक एसिड भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 हैं, वो गिनती मैं आउटलाइंस बनाऊंगा तो बड़ा सिमेट्रिक सा सुंदर सा स्ट्रक्चर है, मैं उसे उजाड़ रहा हूँ ऐसा करता है, ऐसा लगता है, पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे हैं जो इस तरह का शेप बना रहे हैं। साइड में अगर आप देखोगे तो ये तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू करता रहेगा इस तरीके से, और ये प्लेनार स्ट्रक्चर है। बोरिक एसिड इस तरीके से प्लेनार चपटे स्ट्रक्चर बनाकर बढ़िया से फैलता रहता है पूरे सॉलिड स्टेट में। ये कैसा है, ये बड़ा शानदार उदाहरण है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। आप देखें डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस जो था हाइड्रोजन का,
वो ऑक्सीजन के डेल्टा माइनस से अट्रैक्ट होता रहता है और ये बिल्कुल एक हेक्सागोनल जाल जैसा बुन देते हैं। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर भी दो तरह की हो सकती है, होमो इंटरमोलिकुलर और सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरमोलिकुलर रेस्पॉन्डिंग को भी आप दो तरह से बोल सकते हो। कैसे? एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में कर रहे हैं तो होमो इंटरमोलिकुलर, अलग अलग कर रहे हैं तो हेटेरो इंटरमोलिकुलर। कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे देखिए पानी है, पानी का आपस में अट्रैक्शन देखिए, ये होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का उदाहरण है। पानी के मॉलिक्यूल्स, ईच वाटर कनेक्ट्स विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 लोन पेयर्स के थ्रू जो डेल्टा माइनस है यहाँ पे, और 2 हाइड्रोजन के थ्रू जो डेल्टा प्लस है। ऐसे ये एच बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, हेटेरो का उदाहरण है, पानी के बजाय अल्कोहल डाल दीजिए, जैसे CH3CH2OH, ये अल्कोहल है। ठीक है, इसमें डेल्टा प्लस भी है हाइड्रोजन पर और डेल्टा माइनस भी है ऑक्सीजन पर। तो डेल्टा माइनस अलग बॉन्डिंग कर रहा है, डेल्टा प्लस अलग कर रहा है। ऑक्सीजन में नोट करिए 2-2 लोन पेयर थे तो 2 जगह हाइड्रोजन को अटैच हो रहे हैं वो, और हाइड्रोजन तो खैर एक ही ऑक्सीजन से अटैच होगी क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही डेल्टा प्लस है। ठीक, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कोई शर्त है? इंटर तो समझ में आती है, बड़ी आसान सी, अभी तक वही देख रहे थे। इंट्रा में कोई शर्त है? प्लीज नोट, जब इंट्रा होती है तो एक रिंग जैसा बन जाता है। अच्छा, और वो जो रिंग बनता है 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग, 5, 6 या 7 मेंबर्ड रिंग चल जाते हैं, इससे छोटे नहीं चलते और 7 से बड़े नहीं चलते। अच्छा, जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अगर आपके पास कुछ ऐसा है COOH और यहां पर है OH। अब आप देखिए कि इसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है? हो सकती है। अब इसमें अगर आप देखिए कितने मेंबर्ड रिंग बन रहा है, अगर आप गिने तो कितने मेंबर्ड रिंग है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है। अच्छा, ऐसे ही अगर रिंग टाइप बनाए तो 5 या 7 भी चल जाएगा, 8 नहीं चलेगा, 3 4 नहीं चलेंगे, बड़े और छोटे नहीं चलेंगे। क्यों? उनका शेप नहीं बैठता ढंग से, इसलिए। फाइन, ये जब इस तरह से हम मोड़ रहे हैं, एच बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मुड़ रहे हो और बस एच बॉन्डिंग हो जाए तो ठीक है, जबरदस्ती मोड़ कर तोड़ कर हम एच बॉन्डिंग नहीं करा पाएंगे। तो एक्स्ट्रा स्ट्रेन बहुत ज्यादा ऐड नहीं होना चाहिए अगर हम इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रहे हैं तो। राइट, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप देखें आपके पास नाइट्रोफिनॉल है, आपके पास नाइट्रोफिनॉल है इस तरह से। ठीक है, तो बेंजीन रिंग है, OH NO2 लगे हुए हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर है, जी हाँ, और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। अगर इसी में मेटा या पैरा होती तो क्या होता, वो भी दिखा देता हूं आपको, यहीं बना देता हूं, यहीं जगह है। अगर बेंजीन है और यहाँ पर OH ऐसे होता, और मान लीजिए यहाँ पर NO2 ऐसे होता, तो अब ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत दूर हैं और वो मेटा से एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। अच्छी बात है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ संपर्क कर सकते हैं, जैसे HO NO2, फिर ये NO2 कहीं इसके इस NO2 के ऑक्सीजन ये कहीं और से जुड़ जाएंगे, इसका OH कहीं और से जुड़ जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ते रहे तो आप देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, इसलिए नाम पड़ा है इंट्रा, ये था इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा कौन थी? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गई ये, तो बोलेंगे इंट्रा, और ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बहुत ही मशहूर दूसरा उदाहरण है सैलिसाइल एल्डिहाइड। आयोडीन के जिगर का बहुत बड़ा टुकड़ा है सैलिसाइल एल्डिहाइड, कई बार चर्चा इसकी नाम से होती है, कॉमन नेम है। ये क्या है? अगर आप देखें तो और ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है और बेंजाइल्डिहाइड है। ठीक है, एच बॉन्डिंग हो रही है, बिल्कुल मस्त इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, आप खुद भी स्पॉट कर सकते हैं, हो रही है। एक बहुत रेयर एक्सेप्शन है, बहुत ही मजेदार, उसको भी देख लीजिए। एक क्लोरल करके मॉलिक्यूल होता है CCl3COH, ये होता है क्लोरल, और एक होता है क्लोरल हाइड्रेट, ये है CCl3
Cl3 CH के साथ, यहाँ OH और OH, ऐसा। इसमें पता है यहां पर H बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे ये दिखाया ना, यहाँ H बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों? Cl के साथ तो आमतौर पे नहीं होती थी। इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वगैरह ऐसी है और बॉन्ड लेंथ ऐसी है कि Cl पे डेल्टा माइनस तो ठीक ठाक है ही, वो बहुत दूर पड़ जाता था, ये दिक्कत आती थी। ये बिल्कुल इतना पास धकेल देता है कि सेट हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ी बहुत इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बावजूद नोट करने में आती है कि N या F या O नहीं है, यहाँ Cl है, उससे हो रही है, कोई बात नहीं है। बस ये एक ही एक्सेप्शन है, ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए, हर जगह नहीं होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या असर पड़ता है H बॉन्डिंग का? अच्छा, कई सारे पर असर पड़ता है। कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहला और सरल आइडिया है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, जी हाँ, अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट एक्स्ट्रा अट्रैक्शन रखेंगे तो सोल्यूट मजे से सॉल्वेंट में घुल जाएगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे अमोनिया है, अल्कोहल्स हैं, ये पानी में हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि अमोनिया और अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो लव ईच अदर। चीनी पानी में घुल जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, वो पानी के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, अट्रैक्शन अच्छा होता है तो घुल जाते हैं। ओके, अच्छी बात है। और कोई उदाहरण है? बहुत सारे ले सकते हैं आप, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत पॉपुलर है। आप देखें, जैसे यहाँ पर अल्कोहल था, जी, और यही अल्कोहल पानी में घुल गया, बिल्कुल। कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, वो मजे से पानी में घुल जाते हैं। क्यों? COH ग्रुप की पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है। एक छोटा थोड़ा मजेदार एग्जांपल है, थोड़ा डिफरेंट है पर मजेदार है। एसिटिलीन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ऐसी है जो पानी में नहीं घुलती क्योंकि बहुत पोलर नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये एसीटोन में बहुत घुल जाती है। क्यों? एक बहुत वीक किस्म की सही पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अरे, आपने तो कहा था NO या F से जुड़ी हो तब होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब भी वही कह रहा हूं, मैंने कहा था NOF या उनके जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला दूसरा पदार्थ, ये sp हाइब्रिड कार्बन जो है, ये नाइट्रोजन जैसा तो नहीं हो जाएगा, पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 या sp3 नॉर्मल जिस कार्बन को आप देखते हैं उससे ज्यादा है। इसके चलते हाइड्रोजन पर बहुत कम ही सही पर डेल्टा प्लस आता है। अच्छा, और वो जस्ट इस लायक हो जाता है कि बहुत वीक ही सही पर वीक H बॉन्ड्स बन जाएं। अगर अच्छे बन रहे होते तो पानी में भी घुल जाता, लेकिन फिलहाल नॉन पोलर है एसीटोन या लेस पोलर है एसीटोन, उसमें घुल जाती है एसिटिलीन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के कारण। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, तो अलग से ही मैंने आपको सूचना के रूप में बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुरा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। याद रह जाए तो ठीक है, और नहीं तो आगे देखते हैं। अल्कोहल्स और ईथर्स पानी में कैसे घुलते हैं? अगर आप देखें, आइसोमरिक हो सकते हैं। कौन से? CH3 OCH3 और CH3 CH2OH, ये कैसे हैं? ये आइसोमर्स हैं। अच्छा, अगर आइसोमर्स हैं, वजन बराबर है, फॉर्मूला भी बराबर है, C2H6O दोनों हैं, ईथर्स बिल्कुल पानी में नहीं घुलते, और अल्कोहल्स, छोटे वाले अल्कोहल्स जिनका साइज कम है, वो पानी में हाईली सॉल्युबल है। इथेनॉल तो इनफाइनाइटली सॉल्युबल है। अच्छा, क्यों? इथेनॉल में ये जादुई OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। ईथर्स में ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ी नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में समर्थ नहीं है। इस वजह से ईथर्स पानी में नहीं घुलते, अल्कोहल्स घुल जाते हैं। क्या इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स का भी कोई असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है। कैसे? ध्यान रखना, सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ H बॉन्डिंग करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर मान लो मेरे पास है दो आइसोमर्स, जैसे OH और OH, कैडिकॉल कहते हैं जिसे, और उसी का एक आइसोमर है रिसोर्सिनॉल, OH और OH। किसी ने पूछा बताइए पानी में ज्यादा कौन खिलेगा, तो मैं कहूंगा कि भाई ये कैडिकॉल तो आपस में H बॉन्डिंग कर रही है, हाँ जी, खुश है, बहुत अच्छी बात है। पर आपस में ही खुशी खुशी H बॉन्डिंग कर ली तो पानी के साथ H बॉन्ड्स, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आपस में ही मजा आ रहा है। यहां पर आपस में H बॉन्ड नहीं बना सकते, तो फिर पानी के साथ बनाएंगे। और अगर सॉल्वेंट के साथ ही बनाएंगे H बॉन्ड्स, तो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग वालों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और ट्रा वाले आइसोमर्स अगर उनके हैं तो अपेक्षाकृत उनकी सॉल्युबिलिटी ट्रा वालों की, सॉरी, टर वालों की अपेक्षा ट्रा वाले कम होंगे।
पर ध्यान रखना ये एक दूसरे के रिलेटिव है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, चलो अब दो तीन मजेदार हल्के फुल्के पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे एच बॉन्डिंग्स बढ़ जाएंगी वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा लिक्विड या सब्सटेंस और विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे पानी है, कुछ एच बॉन्डिंग है उसमें, ठीक है, लेकिन HOH या ROH अल्कोहल एक OH ग्रुप है, ग्लाइकॉल्स में 2 OH ग्रुप हैं, ग्लिसरॉल में 3-3, जैसे ग्लिसरीन देखिए अपनी गाढ़ी गाढ़ी सी लिक्विड होती है, 3-3 OH ग्रुप हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूल पर तो विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी। सो मच सो कि ग्लूकोज वगैरह जिसमें 6-6 OH ग्रुप या 5-5 OH ग्रुप इस तरह के मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं शुगर्स में, तो सॉलिड हो जाते हैं फिर। क्यों? बहुत अच्छी एच बॉन्डिंग होती है इसलिए, राइट? ऐसा। यही नहीं, बॉइलिंग पॉइंट्स पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। मॉलिक्यूल्स दूर जा रही हैं तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है, देखो जैसे अगर HF था और HF है और यहां भी HF है, ऐसे है, एक मॉलिक्यूल 2 और 3 लिक्विड थे, बॉइल कर रहे हैं तो इनको दूर जाना पड़ेगा। जब ये दूर जाएंगे तो क्या इनका एच बॉन्ड टूटेगा? जरूर टूटेगा। अच्छा, तो बुरा लगेगा? लगेगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जी हाँ। तो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग अगर है तो बॉइलिंग के वक्त वो टूट जाती है, टूटने में एनर्जी खर्च होती है, ये मुश्किल से होता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था कैडिकॉल का, ये है। अगर ऐसे 2-3 मॉलिक्यूल, बहुत सारे ढेरों मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, फाइन, इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है, इसमें हो रही है, बॉइलिंग हुई, ये दूर चला गया, ये दूर चला गया। बॉइलिंग के दौरान मॉलिक्यूल टूट थोड़ा जाता है, मॉलिक्यूल तो वही है। हाँ, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो क्या इनके दूर होने में एच बॉन्डिंग टूटी? नहीं टूटी। अच्छा, तो एच बॉन्डिंग तो वही, क्योंकि ट्रा तो मॉलिक्यूल के अंदर है, मॉलिक्यूल तो पूरा पूरा जा रहा है। इट इज समथिंग लाइक मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया हुआ है, ये एच बॉन्डिंग टाइप है ना। अगर मैं चल रहा हूं तो नमस्कार मेरे साथ चल रहा है, एच बॉन्डिंग मेरे साथ चल रही है। लेकिन अगर एक हाथ मेरा है और एक हाथ आपका है, किसी दूसरे का है, मैंने एक इधर नमस्कार किया है, दूसरा इधर नमस्कार किया है, इमेजिन कर लीजिए इधर से एक हाथ, इधर से एक हाथ, और मैं अलग जा रहा हूं, ये अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, तो नमस्कार टूट जाएगा, राइट, है ना। तो ये वैसा ही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ब्रोकन if the substance is boiled. Intermolecular bonding is broken if the substance is boiled, hence it increases the boiling point. Intramolecular bonding is unaffected by the process of boiling, hence it has no significant effect on boiling point. तो टर वालों का बॉइलिंग पॉइंट ट्रा वालों से अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। इसी बात पे क्वेश्चन बताइए नाइट्रोफिनॉल से आपके पास, मुझे बताइए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थो का या पैरा का? पैरा का ज्यादा होगा। क्यों? इसमें ट्रा होगी और इसमें टर, और टर का ज्यादा होता है ट्रा से बॉइलिंग पॉइंट, अगर आइसोमर्स है। बिल्कुल आप देख भी सकते हैं प्रॉपर सुंदर डायग्राम के साथ। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वेल, आप देखेंगे टर्शियरी अमीन में एन से जुड़ी हुई एच नहीं है, इसमें नो एच बॉन्डिंग, इसमें है, तो इनमें एच बॉन्डिंग हो सकती है। तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि भाई सबसे कम अगर मोलर मासेस सिमिलर हैं, अगर सिमिलर मोलर मासेस हैं, अपेक्षाकृत कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्शियरी अमीन्स का एज कंपेयर टू प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स। प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स में तो दोनों में एच बॉन्डिंग हो रही है, तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो मोलर मास से कर लीजिए, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसा रीजनेबल प्रेडिक्शन आप आराम से कर सकते हैं, राइट? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर में एक बार लगा दीजिए। पानी है, मेथनॉल है और ईथर है। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सबसे कम होगा ईथर का। क्यों? नो एच बॉन्डिंग। उससे ज्यादा है अल्कोहल का। क्यों? थोड़ी थोड़ी एच बॉन्डिंग, ए ओ और एच के थ्रू। और सबसे ज्यादा है पानी का, दो यहां से और दो यहां से, 4 बन रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पानी का होगा। ऐसा है। कुछ एक एनसीईआरटी स्टाइल के रीजनिंग्स हैं, जैसे है कि आइस पानी पे तैरती है। क्यों? वैसे तो सीधा सा उसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए तैरती है। फिर लोग कहते हैं डेंसिटी कम क्यों होती है? पर
लोग बोल देते हैं आइस हैज एन ओपन केज स्ट्रक्चर। ओपन केज स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर आपको बना रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से इतना ही लिखना होता है, आइस हैज एन ओपन केज स्ट्रक्चर। वो बहुत ज्यादा अर्थ समझाने पर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स बनाने पर न बल देते हैं और ना ही वो बच्चों से बनने वाले हैं। तो मुद्दे की बात है, ये पानी है और ये आइस है। आप देखिए आइस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पानी में तो रैंडम मॉलिक्यूल आते हैं जाते हैं, एच बॉन्ड बनते और टूटते रहते हैं। आइस तो सॉलिड है, तो उसमें एच बॉन्ड्स मतलब पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ उसी डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं एक दूसरे को जहां पर वो एच बॉन्ड सबसे अच्छे बना सकें। उस चक्कर में बीच में खाली जगह छूट जाती है और कह देते हैं ओपन केज स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है? इसके चलते डेंसिटी कम हो जाती है और बर्फ पानी में तैरने लगती है ना। See, a more beautiful way of putting it, कि वो ओपन केज स्ट्रक्चर है जिसको बहुत फैशनेबली हम आपको दिखा रहे हैं। इसे ड्रॉ करना होगा? हाँ बिल्कुल नहीं, बस देख कर तृप्त हो जाएं, दर्शन कर लें, इतना पर्याप्त है। एक टपोरी सी बात है, अगर आपके पास हैवी वाटर है तो अच्छा, D2O होता है हैवी वाटर, पानी है वाटर, तो पानी को जमाएंगे तो आइस और D2O को जमाएंगे तो हैवी आइस। अच्छा और नाइस, अजीब है। एक्चुअली हैवी वाटर गाढ़ा भी होता है पानी से, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। क्यों? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है पानी से। क्यों? ड्यूटेरियम इज स्लाइटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो OH बॉन्ड से ज्यादा पोलर है OD बॉन्ड, डेल्टा प्लस चार्ज ड्यूटेरियम पे ज्यादा होता है बजाय हाइड्रोजन के। H बॉन्ड्स अच्छे बनाती है और इसीलिए डेंस भी होते हैं मॉलिक्यूल्स, पास पास होते हैं क्योंकि आकर्षण ज्यादा है। डेंस होते हैं तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है और बर्फ डूब जाती है पानी में, अगर भारी पानी से बनी हुई बर्फ हो तो। ऐसा है। बहुत सारी बातें हो गई और अब आगे देखते हैं, बात आएगी एक बड़े स्पेशल मॉलिक्यूल की जिसे दुनिया कहती है क्लैथरेट। वाओ, क्लैथरेट्स क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कमरे में बंद कर दिया जाए, ओ हम तो मैं कमरे में बंद हूं, नहीं मुझे माफ करो, मैं अकेला ही बंद ठीक हूं, है ना। तो मान लीजिए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या आप कहेंगे कि मैंने कमरे के साथ बॉन्ड बना लिया है? बट नॉनसेंस, मैं फंस गया हूं कमरे में। हाँ जी, आई एम जस्ट ट्रैप्ड। बिल्कुल, ऐसे कंपाउंड्स का भी एक नाम है, उन्हें क्लैथरेट कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? दोबारा बोलिए। क्लैथरेट कंपाउंड्स मतलब क्या है, क्या होते क्या है? एक्चुअली ये बड़े मजेदार कंपाउंड्स हैं। इनकी खोज कुछ डिकेड्स पहले ही हुई है और समुद्र से आपको शायद अंदाजा होगा कि धरती में और इवन समुद्र के तल में बोरिंग करके लोग वहां से भी पेट्रोलियम निकाल रहे हैं। अच्छा, और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनको माइन किया जा रहा है वहां से। जी हाँ, समुद्र के तल में इससे भी बहुत अथाह मात्रा में लोगों ने डिस्कवर किया क्लैथरेट कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। वाह, ये क्या है? एक्चुअली समुद्र तल में आप जाएंगे तो एक तो वहां धूप पहुंचती नहीं है, बहुत कम पहुंचती है, न के बराबर। पानी वहां बड़ा ठंडा है, हर जगह इक्वेटर पर भी, अरे यार जहां हो सकता है वहां ठंडा है, मतलब इक्वेटर के नहीं, पोल्स के आसपास चले जाइए, थोड़ा और ऊपर आ जाइए, बस इतना है ना। तो कई जगह ऐसे समुद्र हैं या समुद्रों में कई ऐसी जगह हैं जहां समुद्र तल में बॉइल, तो प्रेशर बहुत हाई है, समुद्र के नीचे गया, टेम्परेचर कम है, ठंडा पानी है वहां पर। तो वहां क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो फ्रीजिंग पानी जैसा होता है वो नेटवर्क जैसा बना लेते हैं। किसका? H2O 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 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक पूरा स्फीयर या केज बना लेते हैं। अच्छा, वो एक पूरा केज बना लेते हैं, जी हाँ। और उस केज के बीच में फंस जाता है कोई दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे मीथेन। तो बस वो फंसा हुआ पड़ा है। मीथेन गैस थी, भाग सकती थी, पर जाए तो जाए कहां? क्यों? हमें तो कैद खाने में बंद कर दिया, किसमें? पानी के मॉलिक्यूल्स के। अब पानी के मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हैं? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं आपस में। इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें कोई मॉलिक्यूल ट्रैप हो गया है एक केज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये कहलाते हैं क्लैथरेट्स। और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़े हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स का केज बना है पानी के मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। वाह, तो ये प्रॉपर कंपाउंड्स है। जी हाँ, ये प्रॉपर कंपाउंड्स हैं। नोबल गैसें भी क्लैथरेट कंपाउंड्स बना सकती हैं, पर नोबल गैसेस तो कंपाउंड्स बनाती ही नहीं,
तो ये ट्रू कंपाउंड्स तो है ही नहीं, नोबल गैसों को बॉन्ड तो बनाने नहीं है, उनको तो जाके वहां बैठ जाना है, फंस जाना है, अब पानी उनके आसपास जाल बुन देगा, पानी में फंस जाएंगी वो। ठीक है, तो बहुत छोटी हुई हीलियम नियॉन तो वो भाग जाती है निकलकर, तो वो क्लैथरेट्स नहीं बनाती, और जो बड़ी है आर्गन, क्रिप्टन, xenon, वो मजे से क्लैथरेट्स बना सकती हैं। राइट, अच्छी बात है। ये .6H2O तो बहुत शुभ नहीं है, लेकिन हाँ, आर्गन, xenon, क्रिप्टॉन ये क्लैथरेट्स बना सकते हैं, बिल्कुल। कौन सी, वो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, और फाइनली अब हम कंक्लूड करेंगे कैसे, आफ्टर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है। गैस कीजिए, किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे देखी जाएगी। नेचर क्या है एच बॉन्डिंग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो जैसे जैसे चार्जेस बढ़ जाएंगे वैसे वैसे एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो सबसे प्रमुख तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एच के साथ एफ, ओ या एन लगते हैं, तो अगर एच एफ है या एच ओ है या एच एन है, तो आप देखेंगे डेल्टा प्लस चार्जेस, डेल्टा माइनस की बात नहीं कर रहा, डेल्टा प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा होगा अगर वो फ्लोरीन से जुड़ी है बजाय ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन वाले पे ज्यादा होगा बजाय इसके कि अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है। दिस इज अज्यूमिंग दैट फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन देम, न्यूट्रल है तब, मतलब डेल्टा माइनस होगा सब नहीं। ये क्या बोल दिया आपने, मैं समझाता हूं। आप देखो, एक ये भी हो सकता है अमोनियम, अच्छा प्लीज नोट इसमें नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज प्लस है, हाँ जी, प्लस चार्ज आने से नाइट्रोजन तड़प होती है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पागलों की तरह बढ़ गई है, वो मामूली नाइट्रोजन नहीं है, वो प्लस चार्ज वाली पागल नाइट्रोजन है। जी हाँ, तो आप देखेंगे इन हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये प्लस चार्ज के आने के साथ एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, आपको ये देखना होगा। अच्छा, तो हम इस तरह के केस की यहां पे तुलना नहीं कर रहे हैं। प्लस चार्ज ऐसा फॉर्मल प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जीरो फॉर्मल चार्ज है एन, ओ या एफ पर। तब अगर आप तुलना करेंगे उनसे साथ जुड़ी हुई एच की, तो हाइड्रोजन पर चार्ज ऑब्वियस सी बात है एफ वाली पे ज्यादा आएगा, ओ वाली पे कम, एन वाली पे और भी कम, और यही होगी इनकी एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सिंगल एच बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करें एच एफ में, पानी में और अमोनिया में, सिर्फ एक एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ देखें, किसकी ज्यादा होगी, एचएफ की, पानी की, अमोनिया की, सबसे ज्यादा होगी एचएफ की, उससे कम पानी की, और सबसे कम अमोनिया की। क्यों, चार्जेस के कारण, ऐसा है। राइट, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, हायर द चार्ज एंड हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पर इसके अलावा एक दूसरा फैक्टर भी है, क्या, डेल्टा माइनस चार्ज किसके ऊपर है। अच्छा, एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, यस, वो पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, वो प्योरली आयनिक अट्रैक्शन नहीं है, उसमें से हल्का सा तड़का एच बॉन्डिंग में कोवलेंट का भी होता है, मतलब एन एटम ज्यादा पोलराइजेबल है। तो मान लीजिए आपके पास है NH3 और आपके पास है HF, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप बढ़िया से कंपैरिजन करें। अब हाइड्रोजन पे सब पे डेल्टा प्लस चार्ज हूबहू एक जैसा है, सारी हाइड्रोजन्स पर डेल्टा प्लस चार्ज हूबहू एक जैसा है, और अगर आप एक बार नाइट्रोजन, एक बार ऑक्सीजन और एक बार फ्लोरीन ले लेंगे, अच्छा ऐसे, जी हाँ, बहुत ही मजेदार कंपैरिजन है, ध्यान से देखिए, तो आप पाएंगे एच बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगी, डेल्टा प्लस सेम है, डेल्टा माइनस चार्ज एन पे अच्छा, ओ पे अच्छा या एफ पे अच्छा, जवाब है एन पर अच्छा है बजाय ओ कर, ओ के और ओ पर अच्छा है बजाय एफ के। ये बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि एफ पर डेल्टा माइनस ज्यादा होना चाहिए, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, होगी यहां पर, इसलिए मैंने कहा था पोलराइजेबिलिटी का महत्व है, एन पर फर्क ज्यादा है बजाय ओ के, ओ का फर्क ज्यादा है बजाय एफ के। हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए जिसके साथ वो जुड़ी हुई है, लेकिन अगर डेल्टा माइनस चार्ज जिनके ऊपर है उनकी स्ट्रेंथ देखनी है तो आप याद ही कर लीजिए, एन वाली अच्छी है ओ से, ओ वाली अच्छी है एफ से, बशर्ते डेल्टा प्लस वाले भी सब एक जैसे हो। यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा है, ये कम और ये कम, ये लर्न करना पड़ेगा फैक्टर, ये ऑर्डर लॉजिकल नहीं लगता है भी नहीं, ये है, और ये जैसा है आपको वैसा ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉट रियली, पर यू नेवर नो, जेब में आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, और आ सकता है, संभावना है, इसलिए ध्यान दीजिए। कैसे स्ट्रेंथ कंपेयर करें, हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए। आप एक काम करें, अगर सिंगल एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो सबसे पहले डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालें। अब डिफरेंस में एक तो एच है और दूसरा जो है तो एच वाला सेम भी है, अगर तो डिफरेंस की बजाय आप चाहें तो एन ओ या एफ या जो भी सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी का डेल्टा ई एन ज्यादा होगा, और जाहिर सी बात है फिर वैसे ही एच पर डेल्टा प्लस ज्यादा होगा। Once you have learned this, आइए एक बार देखते हैं अमोनिया, एचएफ और पानी को। क्या आपको पता है कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज 2 एच बॉन्ड्स बनाता है, एक इधर से और एक इधर से। अच्छा, एचएफ का एक मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज 2 एच बॉन्ड्स बनाता है, कैसे? एक एफ से और एक एच से। लेकिन सबसे मजेदार है पानी, एक पानी का मॉलिक्यूल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार एच बॉन्ड्स बनाता है। अच्छा, कैसे? ऐसे, एक इधर से, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, ये फैक्ट है, आप इसको फैक्ट के तौर पर ही ध्यान रखें। और इसी के चलते अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ याद है हमें, 100 डिग्री सेल्सियस। एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट मात्र 18 डिग्री सेल्सियस होता है, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट -33 डिग्री सेल्सियस होता है। एचएफ और अमोनिया 2 एच बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर पानी भी 2 बना रहा होता तो पानी यहां बीच में आ जाता। पर प्लीज नोट, एचएफ का इंडिविजुअल बॉन्ड अच्छा होता है अमोनिया से। एचएफ का बॉइलिंग पॉइंट 18 डिग्री ज्यादा है अमोनिया के -33 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन पानी 2 नहीं, 4 बनाता है, डबल बना रहा है। तो इंडिविजुअल बॉन्ड एचएफ से कम भी है, तो 2 की बजाय 4 बना रहा है, तो जीत जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा पानी का होता है। और ठीक यही ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट्स का भी है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है अमोनिया का, उससे ज्यादा एचएफ का, और सबसे ज्यादा पानी का। ऐसा है। तो बच्चे लोग, इसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कथा होती है समाप्त, और इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग की दिव्य कथा भी विराम पर आ जाती है। हम रिवीजन करते रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, थ्योरी रिवाइज करते रहेंगे, आप नोट्स पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, असाइनमेंट्स लगाते रहेंगे, क्योंकि बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य चैप्टर था जो अभी भी खत्म हुआ है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी इनऑर्गेनिक आपका पीछा करेगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए ये शानदार जाए, और अगर आपने मेरी बात थोड़ा भी ध्यान देके सुनी है तो ये शानदार तो हो ही गया होगा। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, इसमें कुछ भी एक आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं बचना चाहिए। अरे आपने हमसे पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, तो यहां पर तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। जो आपके डाउट्स हैं, कुछ हैं, 99% आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे जैसे ही आप उस थ्योरी को ढंग से याद कर लेंगे जो हमने आपको कही है। बचा वो 1%, हम हैं, हम बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।